السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ کراچی سے لوگ جو ہے وہ دوسرے شہروں میں شفٹ ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کراچی کے لوگوں کو تو کہیں وہ وائبز ہی نہیں آتی جو کراچی میں آتی ہیں، تو اسی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ جی ہاں، یہ پچھلے آپ اس کو تقریباً ایک ڈیکیڈ کہہ لیں، تقریباً 10 سال کہہ لیجئے، یہ ایک ماس مائگریشن سارٹ آف شفٹ جو ہے وہ انٹر سٹی شروع ہوئی ہے، اور کراچی کے ریزیڈنٹ جو ایکچول ریزیڈنٹ تھے یہاں پہ، وہ اب ملک کے دوسرے حصوں میں پرٹیکولرلی اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی اینڈ ویسنٹی اراؤنڈ جو ریچیبل ایئرپورٹ سٹیز ہیں، یہاں موجود ہے ایئرپورٹ، وہاں پہ موو کر رہے ہیں۔ ظاہراً تو اس کی وجہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامیکل، سوشو اکنامیکل ڈسٹربنس، کراچی ریلیٹڈ ڈسٹربنس جو ہیں، انفراسٹرکچر ڈسٹرکشنز، اور اسی سے ریلیٹڈ بیسکس لائف نیسیسٹیز کی جو ڈیرینجمنٹس ہیں، بیسک ریزنز تو اس کے یہی ہیں جو ایک کسی بھی انٹر سٹی اس میں ہوتے ہیں، یا کوئی ایڈمنسٹریٹو فلاز جو پرسنل فلاز کسی کو ایڈمنسٹریٹولی فیل ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ انٹر سٹی شفٹ کرتا ہے۔ لیکن اس شفٹ کو سمجھنے کے لیے کچھ ڈائنامکس کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ یہ کنٹینیوس شفٹ ہے، اور یہ نہیں لگتا کہ یہ شفٹ آنے والے چند سال میں رکے گی، یہ مزید بڑھے گی۔ تو اب اس کی کیا ڈائنامکس ہیں، اس ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا کراچی کو سمجھنا ہوگا، چاہے وہ پری پارٹیشن ہو یا پوسٹ پارٹیشن۔ کراچی کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے، اور وہی فیصلے آج جو اثر انداز ہو رہے ہیں اس ماس مائگریشن کے اوپر۔ میں ماس جملہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا جب ابھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، تو ایک بہت بڑی موومنٹ ہے جو لوگ انٹر سٹی شفٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، پری پارٹیشن میں کراچی جو ہے وہ جو فاؤنڈیڈ آپ کہہ سکتے ہیں واز فاؤنڈیڈ ان 1729 میں، ایک اسمال ولیج کہلاتی تھی جسے کولاچی کہا جاتا تھا۔ برٹش کالونیل رول جو تھا اس نے اس کو گورن کیا، اور وہ 1843 سے 1947 تک جو ہے برٹش کالونیل رول کے تحت یہ ان کے انڈر ایڈمنسٹریٹو گورننس تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بیسیکلی اسٹریٹجیکلی جو تھی ٹریڈ اینڈ کامرس کا ہب ہوا کرتا تھا۔ تو 1947 کے جب پارٹیشن ہوا تو کراچی واز دی کیپٹل آف پاکستان، اور وہ پھر 1959 تک ایز اے کیپٹل چلتا رہا۔ 1959 میں کیپٹل اسلام آباد بنایا گیا، اور کراچی کو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ سٹی کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا گیا، اور وہ پھر 1970 تک جو ہے 1959 سے 1970 تک فیڈرل ایڈمنسٹریٹ سٹی کے طور پہ استعمال کراچی چلتا رہا، اور اسلام آباد کو اس طور پہ اس کو کیپٹل بنا دیا گیا 1959 کی۔ 1970 میں پریزیڈنشل آرڈر کے تحت 2 اپریل 1970 کو کراچی کو جو ہے سندھ کے حوالے کر دیا گیا، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مرج کر دیا گیا، اور 1970 آنورڈ سے آج تک یہ سندھ کے انڈر کنٹرول ایک سٹی ہے، جو جس کی مینجمنٹ، جس کی ایڈمنسٹریٹو جتنے پارز ہیں، وہ بیسیکلی جو ہے پروونشل ایڈمنسٹریشنز کے گورننس میں دے دی گئی۔
ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के अंदर जो कराची की जो परवरिश हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ें सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स रखा करती थीं जब कराची मौरिद वजूद हुआ 1947 के बाद एज ए प्रॉपर कैपिटल सिटी। और क्योंकि ये कॉलोनियल सोसाइटी थी तो इसकी डेवलपमेंट उसी हवाले से द डे ब्रिटिशर्स ने इसको ओन किया था एज ए कॉलोनी, उस वक्त से इसकी जो है जो बर्थ के बाद से उसकी जो ग्रूमिंग थी ये ब्रिटिश के अंडर में थी, और उसको ये एक कल्चरल सिग्निफिकेंस के तौर पे लेकर जा रहे थे, जिसमें केपीटी जो थी 1854 के अंदर केपीटी की इन्होंने बुनियाद रखी। सिमिलरली चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1860 के अंदर, सिंध मदरसा 1885 के अंदर, और डीजे कॉलेज 1887, और इसी तरीके से बहुत सारे जगहें और इंस्टीट्यूट्स जो थे जो एक ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के अंदर कराची के नक्शे को एक बेहतरीन एडवांस शहर के तौर के ऊपर दिखाता है। 1947 में जो मास माइग्रेशन इंडिया, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड अदर रीजन से जो मास माइग्रेशन हुई, ये माइग्रेशन बेसिकली तो ऑप्ट किया गया था इनटू द न्यू कंट्री जो परसीव की गई थी, उसको ऑप्ट किया गया, और इनिशियली कराची के अंदर उनको जो है टेम्पररी सेटलमेंट दी गई, और ट्रांजिशनल पीरियड के दौरान कराची में ही कैंप से लेके जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उनको बसाया गया। वो लोग जो अपनी जायदादें और अपने विरासतें छोड़ कर पाकिस्तान के लिए ऑप्ट कर आए। ये ऑप्ट का जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ऑप्ट जो होता है वो डिस्क्रिटरी होता है, वो किसी मजबूरी की बिना पे नहीं होता, वो सेल्फ सेक्रीफाइस की बुनियाद के ऊपर होता है, जिसमें आप अपनी चीज़ें डेलिबरेटली छोड़कर किसी एक फैसले की तरफ जाते हैं जो आपने चुना होता है। तो इन्होंने ऑप्ट किया उन लोगों ने, और पाकिस्तान वो आ गए और फिर बसाए गए वो कराची में। और क्योंकि वो लोग एक ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के तहत गवर्न करते आ रहे थे, उनकी जो ग्रूमिंग थी वो इंडिया या सब कॉन्टिनेंट के अंदर अंडर कॉलोनियल सिस्टम थी, तो वो एक एडवांसमेंट रखते थे। और जब वो वहाँ से शिफ्ट हुए और कराची आए तो फिर कराची एक हब बन गया एडवांस सिटी का। यही वजह है कि सबसे पहला कैपिटल कराची को बनाया गया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हालात बने और जो स्ट्रेटेजिकली चेंजेस आई, और जिसमें कराची को फिर एज ए कैपिटल हटाकर फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में रखा गया, और फिर उसके बाद जो उसको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू मर्ज कर दिया गया इनटू सिंध। तो ये बतदरीज एक सुपीरियर लेवल से लेके आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज वो एक डाउनग्रेड होता चला गया कराची, अपनी तमाम एसेंशियल एसेट्स के साथ एक स्पॉइल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट के अंदर चला गया, जिसके अंदर जब फेडरल से हटी और सूबाइयत में गई तो कंट्रोल वो आया जिसमें इंटेलेक्चुअली जो है वो कराची की इंटेलिजेंसिया, जो लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको कंट्रोल करना बड़ा जाहिर सी बात है। वो एक सिस्टम से चलते हुए आए लोग थे और ट्रेंड थे और मुल्क चलाने वाले लोग थे, जो 1970 तक एक बहुत बड़ा मासिव यानी हुकूमती सतह के ऊपर बहुत मासिव अंदाज में ये माइग्रेंट जो थे वो मौजूद थे। लेकिन बतदरीज फिर इनको उन जगहों से जो कहना चाहिए कि हटा दिया गया, या मज़ीद वो लोग नहीं आ सके जो उतने ट्रेंड थे, उतने एजुकेटेड थे, और अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो उन लोगों के हाथ में चला गया जो स्टैंडर्ड वाइज, जो एडवांसमेंट वाइज कराची के किसी भी तबके से मुतासर कुन हैसियत नहीं रखते थे। अच्छा, जब कराची में
इनकी आमद हुई तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ट्रेड एक्सपर्टीज और स्किल्स इन लोगों की थी, एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी थी, और उस वक्त के 2 मेडिकल कॉलेज और इस तरह की यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, और पॉलिटिकल रोल जो था इंक्लूडिंग ऐसे के कायदे आज़म से लेके मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना एंड लियाकत अली ख़ान, और इसी तरीके से वो लोग जो बाकायदा तालीमी शऊर और हैसियत रखते थे, उनके थ्रू चलते चलते अल्टीमेटली ये उन चैलेंजेस के अंदर आया जिसके अंदर जब शिफ्टिंग हुई, मर्जर हुआ, फेडरल से हटाकर इसको सूबाइयत प्रोविंशियलिज्म की तरफ लेकर गए, और अल्टीमेटली उसकी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सारी चीज़ों में जो भी सोशो इकोनॉमिक है या एजुकेशनल सिस्टम है, या वो सारा फिर मुतासर हुआ एक अच्छे सिस्टम से एक पुअर सिस्टम की तरफ। मौलाए कायनात हज़रत अली का एक कौल है कि जब भी दुआ मांगो अच्छे नसीब की मांगो। मैंने बहुत से अक्लमंदों को नसीब वालों के यहाँ काम करते देखा। अब मेरी नज़र में कराची का कुछ यही हाल हुआ कि वो इंटेलिजेंट, वो इंटेलेक्चुअल्स, वो एजुकेटेड लोग जो तालीम से लेके ग्रूमिंग तक एक ईरा लेकर पहुंचे थे, ऑप्ट करके पहुंचे थे, उनको फिर उन लोगों के हवाले कर दिया गया जो नसीब रखते। तो नतीजा ये हुआ कि फिर कराची का कोई भी बाशऊर आदमी वो उस मंजिल पे नहीं पहुंच सका जहां वो सपोर्टिव किरदार अदा कर सके किसी भी हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी तक। और आज हम देखते हैं कि इस शहर का निज़ाम ऑलमोस्ट, चाहे वो रोड हो, चाहे वो सैनिटरी हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, सब ऑलमोस्ट सैबोटेज। किसी किस्म का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि आने वाले चंद साल में कुछ तब्दीली एक्सपेक्टेड है। और उसकी वजह यही है कि ये शहर इन स्पाइट ऑफ द रीजन मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, लेकिन इस एक वजह से इसको ओन भी नहीं किया गया, और ऑलमोस्ट डिसोन की कैफियत में ये शहर आज तक जो है उसी हालत में चल रहा है। अब रही बात कि ये मास मूवमेंट जो इंटर सिटी चल रही है और लोग मुख्तलिफ जा रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जो साहिब इस्तिताअत हैं और उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने आप को दूसरे शहर में मेंटेन कर सकें। और उनके मूवमेंट की भी वजह यही है कि इस शहर में अब इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, तालीम, हेल्थ, जॉब्स, किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी उस लेवल पे नहीं है जिसमें आप एक कंट्रोल मैकेनिक्स के तौर पर ओबीडियंस के एलिमेंट को सामने नज़र रखते हुए अल्टीमेटली फ्यूचरिस्टिक होकर सोचते हैं। तो हमारे ये इस अलमिया ही कहेंगे, इस वजह से वो लोग जिनके जो साहिब हैसियत हैं वो अब उन शहरों में मूव कर रहे हैं ताकि उस बेसिक एमिनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज जो हैं एटलीस्ट उनको जो है वो उस सांचे में रहकर अपने आप को संवार सकें। थैंक यू वेरी मच।